See, yesterday we had started with chapter registration under GST. Just have a quick revision about what we have done yesterday. What is registration is? Registration is fundamental requirement for the taxpayers, so that government can come to know how many taxpayers are there and how much tax they will have to pay according to their business incomes. Okay. Without registration, person can neither collect tax and nor can he claim ITC. So to claim ITC, to collect the tax from the customers, a person needs a registration. We had discussed few advantages. He becomes legally recognized supplier. He is legally authorized to collect the taxes. He can claim ITC. ITC can be claimed at the national level. Registered person is eligible for the government bids, contracts, assignments, and registered person under GST can easily gain trust from the customers. So these were the advantages that we covered yesterday in detail. Section number 22, we started with the chapter with section number 22, that is threshold limit. Now what is threshold limit? For the persons who, for the suppliers who are making taxable supply of goods, it is 40 lakhs, and for normal special category states 20 lakhs. Whereas if he supplies taxable supply of services, if he is engaged in taxable supply of services, a normal stage 20 lakhs, aggregate turnover should not exceed 20 lakhs. Over and above 20 lakhs, he will have to get a registration. And in case of special category, it was 10 lakhs. In case of services. And what about small taxpayers? For going for composition scheme, for opting composition scheme, his aggregate turnover should be minimum should be up to 1.5 crores, that is 1 crore 50 lakhs. If it is crossing more than, if it is crossing the limit of 1 crore 50 lakhs, then he will have to take normal registration. Okay, it is for small taxpayers. I already discussed yesterday the special category states. Okay, 11 are there. What is aggregate turnover? Aggregate turnover includes all these things: value of exports, exempted goods, interstate supplies between distinct persons having same PAN number, and taxable supplies. It excludes RCM recipient when he pays RCM on under RCM when he pay the tax for inward supplies. It is inward supply. When he is purchasing the goods, he is paying the tax. So it will never come in turnover. Aggregate turnover में आपका inward supply का RCM method के अंदर में कोई भी tax नहीं आता. और एग्रीगेट टर्नओवर में ये सारी टैक्सेस भी एक्सक्लूड की जाती हैं अगर इंक्लूड है तो. CGST, SGST, UTGST, IGST, ये हम वैल्यू निकालने के बाद कैलकुलेट करते हैं, जस्ट एज वी हैव लर्नड इन चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई. ओके. Section number 23 says persons who are not liable for the registration, they cannot opt for the registration. I mean, they cannot take registration under GST portal. Why? Because they are dealing in goods that are the goods and services that are outside the purview of GST laws, and or maybe they are dealing in those goods or services which are wholly exempted. So why will they take the registration? There is no need for such persons to take the registration, because neither they will be able to collect taxes from the customer because they are already dealing in wholly exempted goods or goods which are outside the purview of GST laws. And neither they will be, nor they will be able to take or claim ITC. We had also started, I think we have completed also section number 24, which is very, very important: persons who are liable for the compulsory registration. And we have discussed all these things in detail also. CTP, I've already discussed. Who is CTP? A person who does not have a fixed place of business in India. Okay. Suppose he has a place of business in Bangalore.
and he goes in Pune for providing consultancy services. So wherein he has no place of business. Pune, he does not have any place of business there. But if you look at Bangalore, yes, he has a place of business in Bangalore. But looking at Pune, where he's providing consultancy services, he does not have a fixed place of business there. For Pune, he is CTP person, that is casual taxable person. Similarly, we have discussed about non-resident taxable person providing taxable supply. Yesterday only in detail we have discussed. ओके, रजिस्ट्रेशन 2 तक कंप्लीट किया है ना, ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, सेम, लेकिन सीटीपी के जैसे ही होता है वो, बट सीटीपी क्या होता है, विद इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट पर्सन कम्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन इंडिया, समझ आ रही है बात, बट ही डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और अ रेसिडेंस इन इंडिया, ठीक है। तो इनको है ना टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, और टेम्पररी 90 डेज के लिए होती है, एक्सटेंड भी की जा सकती है। ओके, एडवांस टैक्स उनको भरनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन कब लेनी होती है, 5 डेज प्रायर। ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। CTP और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हाउ मेनी डेज। तो नीचे ऑप्शंस होंगे, 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सो अच्छे से हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ को आपको देखना है और समझना है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था सीटीपी का, ठीक है। 1 जनवरी को वो विजिट कर रहा है ना एग्जीबिशन के लिए मुंबई में, लेकिन चेन्नई में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो 1 जनवरी से 5 दिन पहले की आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब एजेंट अगर है, कोई क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही रिसीव्स एंड सप्लाइज गुड्स टू कस्टमर्स, तो he shall be liable for the compulsory registration irrespective of the turnover of such agent. ओईदार सर्विसेज हमने की थी, ओईदार का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। देखो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन तो सबको समझ जाता है, डेटाबेस एक्सेस का मतलब होता है आप किसी की डेटा यूज कर रहे हैं, एक्सेस मतलब उसका यूज कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, उसको निकाल कर फेच करके उसके अपने सिस्टम में डालकर वो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर कैसे होता है, हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ना, कंप्यूटर के सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने पढ़ा था इधर देखो सॉफ्टवेयर भी, ये देखो ये वर्ड सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में। ये वो सारी डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज हैं ऑनलाइन जो हमको मिलती हैं, ठीक है। तो ये कल हमने डिस्कस की थी, ओईधार सर्विसेज कहते हैं इसे शॉर्ट में, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये ओईधार। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, कंपलसरी, जो ओईदार सर्विसेज देता है ना आपको, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल हो जाता है, इवन इफ हिज टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख। सॉरी वेरी सॉरी, ये 40 लाख के दायरे में नहीं आता, ये सर्विसेज हैं, ये 20 लाख के दायरे में आती हैं, और स्पेशल अगर कैटेगरी स्टेट्स हैं तो 10 लाख। वेरी सॉरी, प्लीज आई एम रिपीटिंग, आई एम करेक्टिंग माई मिस्टेक। ये गुड्स नहीं है, ये 40 लाख के दायरे में नहीं आती है। अगर ये सर्विसेज हैं तो ये 20 और 10 वाले स्लॉट में आते हैं। 20 lakhs फॉर नॉर्मल स्टेट्स, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी के लिए 10 lakhs, बट इनके लिए वो है ही नहीं ओईदार। ये वो क्या बता रहे हैं सेक्शन नंबर 24 में, क्या क्यों ओईदार सर्विसेज डाला हुआ है सेक्शन नंबर 24 में, ओनली बिकॉज दे वॉन्ट टू हाईलाइट दैट ओईदार सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं, अगर आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो irrespective of your turnover you have to take compulsory registration। मतलब आपका टर्नओवर बेशक 20 lakhs को क्रॉस नहीं किया है तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेस देन 20 लाख से अभी तक आपका टर्नओवर, तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, वही तो हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 24 बात ही उसकी करता है कि आपका टर्नओवर बेशक 20 lakhs और 40 lakhs के नीचे है तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने पढ़ाई वो है अभी तक, ठीक है ना। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हमने बहुत अच्छे से कल डिटेल में कवर किया था, 30 डेज
प्रायर रजिस्ट्रेशन लेनी होती है जब से आप लाइबल हो जाते हो। ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई थी जो आपको फॉर्म ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 ये फॉर्म है होता है, उसका पार्ट ए में ये डिटेल्स फिल करनी होती है कॉमन पोर्टल पे। फिल करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिसमें पार्ट बी जनरेट होता है। पार्ट बी को ड्यूली फिल करके साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो मांगे जाते हैं वो कॉमन पोर्टल पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद होता है आपका रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन आरईजी मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 2 जिसे 02 लिखा जाता है पर बोलते हैं हम 2 ही हैं। उसमें आपका खुद ही जनरेट होता है, ये आपने नहीं कुछ करना होता। 3 दिन के अंदर है ना प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सारा वो कुछ जो भी आपने डिटेल्स भरी थी वो कुछ सारी चीज़ें चेक करता है, स्क्रूटिनाई करता है, प्रूव करता है एंड 3 वर्किंग डेज में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? प्रूफ, मतलब आपने भी सारी डिटेल्स भरी हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, उसका प्रूफ आपको मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलती है, मतलब फिजिकल पेपर आपको चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, बट यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे अगर आप विजिट करोगे तो वो पेपर आपको ऑनलाइन ये सब मिलता है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक किया था। अब हम शुरू कर रहे हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे, मतलब है इजी बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, ये से लिंक है ना, ये जो हमने पढ़ा ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 के नीचे, इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, प्रॉपर ऑफिसर इसको करेक्ट समझता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, ट्रू है, फेयर है, सब कुछ प्रॉपर है, तो रजिस्ट्रेशन जो होती है ना वो 3 दिन के अंदर हो जाती है। मतलब आपने जब से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ना उसके 3 दिन के अंदर विद इन 3 days बोल रही हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है अगर सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, ऑर्डर में है, सब प्रॉपर है तो। लेकिन अगर 3 वर्किंग डेज में ऐसा नहीं हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ध्यान से सुनेंगे, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन इन 3 वर्किंग डेज, अगर वो 3 वर्किंग डेज में प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन, आपने जब से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसके 3 दिन के अंदर अगर प्रॉपर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया, द रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब अगर उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया ना तो आप डीम्ड टू बी अप्रूव्ड हो जाओगे, मतलब समझा। देखो प्रॉपर ऑफिसर ने तो आपको नहीं बताया, आपको ऑफिशियली मेल तो नहीं छोड़ा, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर 3 दिन के अंदर नहीं किया ना तो आपको समझा जाएगा कि आप अप्रूव्ड हो गए हैं, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उससे कहते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फॉर्म उसके लिए जो फॉर्म होता है ना वो होता है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन 04। ठीक है, कहते हैं हम 3 और 4 है पर लिखा उसको 04, 03, 02 ऐसे होते हैं। अब 03 में क्या होता है देखो, इसके लिए ना 2 फॉर्म्स होते हैं, डीम रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फॉर्म्स होते हैं 3 और 4। अब 3 में क्या होता है, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, ये देखो ये 3 दिन के अंदर ही किया जाता है। देखो वेयर द एप्लीकेंट इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट फॉर एनी रीजन देन, हाँ बराबर, then proper officer requires any further information he shall intimate to the client। अभी सपोज हम एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आपने आपने ना कल के दिन पे, कल मतलब 8 दिसंबर, कल के दिन पे आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ था तो आपने कल के दिन पे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जी कॉमन पोर्टल पे भर दिया, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हुआ, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट बी सब भर दिया। अब उसके बाद है ना अब है ना 3 वर्किंग दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज मतलब 9, 10 और 11, 3 वर्किंग डे, संडे बीच में नहीं आना चाहिए, सैटरडे संडे, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर में आपका अगर ऑफिसर को लगा कि कुछ तो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है या फिर अधूरे हैं, मुझे और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 3 भरने को बोलेगा, मतलब फॉर्म नंबर 3 के अंडर में आपको ये बताया जाएगा
कि आपने ना और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये फॉर्म 3 में भर के देना पड़ेगा। आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है या फिर जो मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको फॉर्म 3 में भर के देनी पड़ेगी। वेयर द एप्लीकेंट इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट, मतलब इनकम्प्लीट है कुछ तो फॉर एनी रीजन, देन प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायर्स एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, so he shall intimate to the client that he will have to fill the form registration GST registration 03। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, 04 क्या होता है, अब ध्यान से देखना, द एप्लीकेंट शैल सबमिट द रिप्ले विथ क्लैरिफिकेशन। अभी क्या होता है, मतलब क्यों क्लैरिफाई क्या करना है क्लाइंट को, एप्लीकेंट को, क्लाइंट को क्या क्लैरिफाई करना होता है इसमें 04 फॉर्म में। विद इन, देखो जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मांगी गई है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है 03 के हिसाब से, वो आप विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म नंबर 04 में फिल करके सारी डिटेल्स आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। मतलब क्लैरिफिकेशन आपको इधर देना है और 03 में आपको डिटेल्स भरनी होती है, जो जो वो मांग रहे हैं ना एक्स्ट्रा डिटेल्स, वो यहाँ पे भरनी है और उसकी क्लैरिफिकेशन देनी होती है 0 फॉर्म 4, सॉरी फॉर्म नंबर 04। ठीक है, और वो कितने दिन के अंदर देना होता है, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंफॉर्मेशन। जब से आपको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है, ठीक है, तो आपको उसके 7 दिन के अंदर वो सारा क्लैरिफिकेशन देना होगा। ठीक है ना, जो जो ऑफ कोर्स जो प्रॉपर ऑफिसर आपसे मांगेगा उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ये आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन में 2 फॉर्म्स होते हैं, एक और होता है 5 भी होता है, देखते हैं 5 में क्या होता है। देखो, द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन। अब अगर अगर आपने जो क्लैरिफिकेशन 0 फॉर्म नंबर 04 में दी थी, अगर उससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, करेक्ट है, सब प्रॉपर ड्यूली आपने उसको फिल किया, प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपने और प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है, ही में अप्रूव द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वो आपको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन देगा। अब तक तो आप डीम्ड रजिस्ट्रेशन में थे ना, अब वो आपको एक्चुअल रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा टू द क्लाइंट विद इन 7 वर्किंग डेज ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन। देखो मतलब 14 दिन हो गए, ये तो 7 वर्किंग डेज में तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी थी, फिर नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज ऑफिसर को मिलते हैं, स्क्रूटिनाई करना, पढ़ना, क्लैरिफिकेशन को रीड करना, सारा चीज़ें उधर जाकर विजिट करके मे भी चेक करना, आपके ऑफिस में आकर होता है, कभी कभी ये भी होता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट आकर चेक भी करते हैं कि वाकई में इनका ऑफिस यहाँ इस प्लेस पे है और इतनी इतनी इनका टर्नओवर है, ये सब चेक करने के लिए वो आते हैं। वो बहुत ज़्यादा डाउट होता है ना तब आते हैं, नहीं तो हर किसी के ऑफिस थोड़ी वो जाते रहेंगे। ठीक है ना, तो एप्लीकेंट को ये विद इन 7 वर्किंग डेज, जब से ऑफिसर को क्लैरिफिकेशन मिली है उसके विद इन 7 वर्किंग डेज क्लाइंट को बताना होता है और ग्रांट करना होता है रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उसको वर्ड में एक्चुअल बोल रही हूँ पर लिख नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन मतलब एक्चुअली होता है। अगर वो डीम्ड है तो डीम्ड लिखा हुआ रहेगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? एम आई गोइंग फास्ट? नो, यहाँ तक क्लियर है ना? यस, यस, ओके। आगे देखो, इफ नो रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस। अगर एप्लीकेंट ने नोटिस के हिसाब से जो नोटिस आया था उसमें अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन सबमिट नहीं किया, या फिर और वर्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये वाला, आपने या तो इंफॉर्मेशन सबमिट ही नहीं किया या फिर प्रॉपर ऑफिसर आपकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो ही शैल रिजेक्ट सच एप्लीकेशन विथ रीजंस इन राइटिंग। आपको मेल छोड़ेंगे, वो राइटिंग में लिखेंगे आपको कि आपकी रिजेक्शन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है, एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05। और इसको ये 05 में बताया जाएगा एप्लीकेंट को। ठीक है, क्लियर है? Where no action is taken in 7 working days on the clarification received from the applicant,
द रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी हैव ग्रांटेड। अगर 7 वर्किंग डेज, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर ऑफिसर के पास 7 डेज होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कि क्लाइंट का अपने आपका जो क्लैरिफिकेशन आपको क्लाइंट की तरफ से मिला था वो सेटिस्फाइड हो कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने 7 डेज से ज़्यादा लगा दिए तो 7 डेज के अंदर मतलब उनको करना होता है। 7 डेज में अगर उन्होंने नहीं लिया कोई एक्शन तो समझा जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड, मतलब एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। एक्चुअली ये डीम्ड कब होता है, जब ये 3 वर्किंग डेज में प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अप्रूवल के लिए टाइम लगता है ना, जब ये 3 वर्किंग डेज में, तब ये केस आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। तो ये लिंक्ड है सारी चीजें, हाँ, मतलब अलग नहीं है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन कुछ अलग नहीं है, वो इसी का ही पार्ट है प्रोसीजर का। हम पढ़े थे ना कल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, उसी का ही पार्ट है ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा और ध्यान से इसको सुनेंगे। टेक अ लुक एट द डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल हैव टू सबमिट फॉर रजिस्टरिंग योर बिजनेस अंडर जीएसटी। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैन। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे विथ सेम पैन, डिस्टिंक्ट मेंबर्स, डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पार्टीज विथ सेम पैन, याद है ना, पढ़ रहे थे ना एग्रीगेट टर्नओवर में। तो जो पैन नंबर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस को पैन नंबर दिया जाता है। पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर, एप्लीकेंट को दिया जाता है ये बिजनेस के नाम पे। तो वो जो बिजनेस का पैन नंबर होता है ना वो आपको सबमिट करना होता है। कहाँ पर, जीएसटी पोर्टल पर। मतलब ये सारे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है, हमने यहाँ पे ही पढ़ा था ना। एक मिनट में आपको लिंक करके बताती हूँ ये कौन सी वाली पॉइंट कह रहे हैं। हाँ, पार्ट बी की पॉइंट बता रहे हैं, ये देखो, ये रीड कीजिए आप पूरा। एप्लीकेंट शैल सबमिट पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। पार्ट बी की बात करें, है तो फॉर्म 1 ही, ड्यूली साइंड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द सेड फॉर्म, अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं ना आपको पार्ट बी में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पैन नंबर, आपको पैन नंबर देना होता है। कॉपी ऑफ योर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है उसका कॉपी। प्रूफ ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन मतलब ये पार्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है, इसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है एक्नॉलेजमेंट की। ये आपको प्रूफ मिलता है ना, जैसे आपको कॉलेज में से फी रिसिप्ट मिलती है, तो जब आप लाइब्रेरी में बुक्स लेने जाते हो तो वो लोग पूछते हैं ना फी रिसिप्ट दिखाइए, तो आप फी रिसिप्ट दिखाते हो ना आप उनको, तो अपना प्रूफ दिखाते हो आप उनको। तो लाइक वाइज ये लोग आपसे प्रूफ ऑफ द बिजनेस रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन ली है उसका प्रूफ दिखाइए। तो आपके पास तो एक ही प्रूफ है, फॉर्म नंबर 02 एक्नॉलेजमेंट वाला, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। और वो या फिर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका बिजनेस जो इनकॉर्पोरेटेड है ना अंडर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रमोटर्स डायरेक्टर्स विद अ फोटोग्राफ। मतलब आपके जो बिजनेस के मेन डायरेक्टर्स हैं, मेन प्रमोटर्स हैं ना, उनका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। आई कार्ड मतलब आइडेंटिटी, आपके बिजनेस, आपकी कंपनी का कोई आई कार्ड दिया होगा ना डायरेक्टर्स को, जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स को, कॉलेज टीचर्स को आई कार्ड कैसे मिलता है, आइडेंटिटी प्रूफ मिलता है ना, तो वैसे ही उनके पास भी आइडेंटिटी प्रूफ होता है। कंपनी के नाम पे वो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के नाम पे वो प्रमोटर्स हैं, उनके फोटोग्राफ के साथ आपको उनका एड्रेस प्रूफ, उनका आईडी सबमिट करना होता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कैंसिल्ड चेक, ये भी देना पड़ता है। कैंसिल्ड चेक क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपका बिजनेस का अकाउंट नंबर होता है ना, अकाउंट, ये जो आपकी बैंक अकाउंट ओपन की हुई है बिजनेस के नाम पे, करंट अकाउंट, उसका जो अकाउंट नंबर होता है वो तो उनको चाहिए ना, जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे। अकाउंट के थ्रू ही तो पेमेंट करते हैं जीएसटी की। ऑथराइजेशन लेटर,
बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, मतलब आप जब भी कोई भी आप किसी को एप्लीकेशन भर के देते हो तो ऑथराइज्ड लेटर होता है ना, वो नीचे उसकी सिग्नेचर भी होती है एक ऑथराइज्ड पर्सन की, तो वो एक लेटर जिसमें आप बता रहे हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन ली हुई है, इस दिन पे ली हुई है और मेरा टर्नओवर इतना है बिजनेस का, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर ऑथराइज्ड लेटर जिसमें सिग्नेचर होना, ऑथराइज्ड मेंबर की सिग्नेचर होना जरूरी है। डिजिटल सिग्नेचर, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं, मतलब आपने स्कैन की हुई सिग्नेचर रखी हुई है, वो उसको आपने अटैच कर दी और वो आपने उनको सबमिट कर दी। आया समझ में? क्लियर है इतना डॉक्यूमेंट्स के तक? डॉक्यूमेंट्स तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ लीजिए। इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसको मुझे थोड़ा सा ऊपर चला गया। अभी भी नहीं दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया है गूगल फॉर्म में, गूगल क्लासरूम पे शेयर किया है मैंने आपसे। बता देना आप मुझे, हाँ शेयर किया है नहीं किया आप मुझे बता देना, फिर हम उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलता है ना, दैट शैल बी ग्रांटेड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। जो आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है ना दैट यू आर रजिस्टर्ड, वो फॉर्म 6 में मिलता है। जो फॉर्म 6 होता है ना वो आपका सर्टिफिकेट होता है। किस चीज का सर्टिफिकेट होता है? दैट यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी पोर्टल, नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड डीलर। तो वो कैसे पता चलता है? उसका सर्टिफिकेट मिलता है, और वो किस फॉर्म में मिलता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेन्स, अब उसमें क्या क्या, जो सर्टिफिकेट होता है ना ये जो रजिस्ट्रेशन का, उसमें क्या क्या होता है? contains GSTIN. What is GSTIN? GSTIN is Goods and Services Tax Identification Number. GSTIN में क्या होता है? 2 कैरेक्टर्स होते हैं स्टेट कोड के, ठीक है। स्टेट कोड मतलब महाराष्ट्र कोड है, तो स्टेट कोड के 2 कैरेक्टर्स होंगे, मतलब फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स होंगे स्टेट कोड के। नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स, ये तो सीक्वेंस फॉलो होता है, ये अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। 10 कैरेक्टर्स होते हैं आपके पैन नंबर के। आपका बिजनेस का जो पैन नंबर प्रोवाइड करते हो ना आप उनको, ये वो पैन नंबर जनरेट करते हैं, मतलब सॉरी GSTIN नंबर जनरेट करते समय ये पैन नंबर लिया जाता है। 2 कैरेक्टर्स ऑफ एंटिटी कोड, एंटिटी मतलब आपके बिजनेस का कोड बना दिया जाता है, आपके बिजनेस का एक अलग कोड बनाते हैं, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स उसके होते हैं, और 1 चेकसम कैरेक्टर। चेकसम कैरेक्टर होता है, चेकसम मतलब ये सबके लिए अलग अलग बनाया जाता है, सो दैट मतलब वो जंबल ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए, सारी कंपनीज एक साथ ना दिखने लगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ GSTIN नंबर, GSTIN जो आपको दिया जाता है ना, IN मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। ईच टैक्स पेयर इज असाइंड अ स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट कोड। देखो 15 हुआ ना, 2 + 10 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो टोटल जो आपका नंबर होता है ना वो 15 डिजिट का नंबर होता है। कौन सा नंबर, कौन से नंबर की बात चल रही है? फोन नंबर की बात चल रही है, मोबाइल नंबर? GST registration number. GSTN number. Yes, GSTIN, that is GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का नंबर दिया जाता है आपको, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि सबका पैन अलग होगा, सबके लिए चेकसम डिजिट जो दिया जाता है वो अलग होगा, है ना। स्टेट कोड, सबसे पहले 2 होते हैं स्टेट कोड, देखो। फिर 10 नंबर्स होते हैं, 1 सॉरी नंबर्स नहीं होते, कैरेक्टर बोलते हैं इसको। कैरेक्टर मतलब जिसमें नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और आपको वैसे भी पता है परमानेंट अकाउंट नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, मतलब 10 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 10 और ये 2 हो गए स्टेट कोड। एंटिटी नंबर होता है आपका एक, मतलब 2 एंटिटी नंबर होते हैं, एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और एक नंबर दिया जाता है आपको। एंटिटी नंबर होता है, नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और एक बाय डिफॉल्ट आपका क्रिएट किया जाता है। और लास्ट होता है आपका चेकसम डिजिट। चेकसम डिजिट ये एंटिटी वाइज ही डिसाइड होता है, सो दैट वो इंफॉर्मेशन जंबल ना हो जाए, ठीक है ना। ब्रांच वाइज भी उसको रखा जाएगा कि वो कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है और ये एक अलग कंपनी है। तो उस हिसाब से चेकसम डिजिट बनाया जाता है, ठीक है। तो हो गया ना 15, देखो 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। 15 डिजिट का ये जीएसटी आई होता है। जीएसटी IN मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ GST registration by type of taxable persons। अब कितने टाइप ऑफ टैक्सेबल पर्सन होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? देखो सबसे पहला एवरी पर्सन, मतलब यहाँ पे हम वो बात करें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे ली जाती है। अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन के लिए अलग अलग टाइप ऑफ पर्सन, मतलब जैसे सीटीपी एक टाइप था, एजेंट दूसरा टाइप था, ओईदार सर्विसेज दूसरे टाइप थे। तो ये हम टाइप्स पढ़ रहे थे ना, टाइप ऑफ पर्सन्स। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। एवरी पर्सन हैज टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट इन विच ही इज लाइबल। ऑफ कोर्स वो लाइबल भी तो होना चाहिए ना। अगर वो जिस दिन उसका टर्नओवर क्रॉस कर गया 40 लाख 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी है तो 20 एंड 10 होता है, गुड्स के लिए 20, सर्विसेज के लिए 10। तो हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट की बात चल रही है, ये एक एक स्टेट वाइज नहीं दिया उन्होंने, हर स्टेट के लिए कॉमन रखा है। एवरी स्टेट का कोई भी अगर पर्सन है, एवरी पर्सन अगर वो लाइबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, सेम पॉइंट। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये देखो, every person who is liable for the registration shall apply for the registration within 30 days from the date he becomes liable। 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी होती है ना। ये नॉर्मल पर्सन की बात चल रही है, जो सीटीपी नहीं होते हैं, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होते हैं, ये उनकी बात चल रही है, ठीक है। 30 डेज के अंदर, मतलब जिनका एग्रीगेट टर्नओवर चेक करके करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस हुआ, 20 लाख को क्रॉस हुआ, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर फॉर्म्स फिल करके रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। सीटीपी और नॉन रेसिडेंट पर्सन होगा तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर ऐसा कोई पर्सन होगा तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द, उसके भी पहले लेंगे तो चलेगा, पर 5 डेज पहले तो पक्का लेने का। एटलीस्ट 5 डेज मतलब 5 डेज पहले तो आपको लेना ही लेना है। 10 दिन पहले लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 5 डेज से लेट नहीं करने का। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप किसी और जगह पे एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं जहाँ पे आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। ऐसी प्लेस, ऐसे स्टेट में जाकर, ऐसी सिटी में जाने के लिए आपको 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यानी कि 26 दिसंबर 2017, कल वाला एग्जाम्पल। तो 25 को भी लेंगे रजिस्ट्रेशन चलेगा, पहले लेंगे चलेगा, 26 के बाद नहीं चलेगा, पेनल्टी चार्ज होगा, या फिर आपको अपनी एग्जीबिशन की डेट्स लेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर इन जीएसटी विल बी पैन बेस्ड नंबर। अभी अभी हमने देखा, ये तो पैन बेस्ड नंबर होता है ना, पैन के ऊपर बेस्ड होता है आपका नंबर जनरेट किया जाता है, पैन बेस्ड नंबर होता है। एंड हेंस having PAN would be a prerequisite for obtaining registration. That means providing them with PAN is very very important। prerequisite मतलब ये very important है, requisite है, required है, compulsory आपको देना ही पड़ेगा अगर registration आपको obtain करनी है तो। The SSC must obtain separate registration for each state। very 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 important। अगर आपके अलग अलग स्टेट्स में बिजनेसेस हैं, ब्रांचेस हैं, तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी।
ईच स्टेट की, अलग अलग स्टेट के लिए स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी. एसएससी मस्ट ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट एज द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी विल बी स्टेट वाइज. क्योंकि जब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ली जाती है ना तो वो स्टेट वाइज ली जाती है. तो आपका अगर अलग स्टेट में अगर आपका बिजनेस है, स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, अंदर स्टेट के अंदर ही है तो फिर अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. वो आपके पैन के अंडर में दिखाने पड़ेंगे कि कितने ब्रांचेस हैं. लेकिन अगर अलग स्टेट में भी आपका बिजनेस है तो आपको अलग रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी. एसएससी shall has an option sorry SSC has an option to obtain a separate registration for each of the business vertical in the same state. वो तो आपके पास ऑप्शन है. अगर आपका सेम बिजनेस सेम स्टेट में है, सेम बिजनेस सेम स्टेट मतलब ब्रांच है, तो वो तो आपकी मर्जी है ना. सेम स्टेट में अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, दैट इज ऑप्शन गिवन टू यू, दैट इज नॉट कंपल्सरी. हम बात कर रहे हैं कंपल्सरी कब लेना पड़ेगा, जब आपका अलग सेम बिजनेस, बेशक सेम बिजनेस है बट अलग अलग स्टेट में है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं, सो बी वेरी केयरफुल. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? दिस वाज बाय डिफरेंट टैक्सेबल पर्सन. आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे लेनी होती है ये वो दिया हुआ. क्लियर है सबको? ओके, सो वी विल बी ज्वाइनिंग आफ्टर 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं. एनीवेज मीटिंग इज showing me less than 1 minute का time, so we will join after 2-3 minutes break. Okay.